A very good morning, children. Welcome to the psychology classroom. Okay, I hope you all are learning properly and doing your work with an honesty and focusing toward your board examination, which should be your priority. Okay, children. So children, yes, you all have studied so many things. We are doing the revisions also. So, children, the last time which we are discussing about is about the disorder, psychological disorder, where we have discussed about the anxiety disorder in a detail. Now, in this today video, I am going to discuss with you about the next kind of disorder, which is a somatoform disorder. So please note it down, children, the topic of today in your notebook, which is the somatoform disorder. So I just hope आपने point note down कर लिया होगा. Somatoform disorder. Fine. Now somatoform disorder, in this, children, you are getting the word soma. Soma, what is the meaning of soma? Soma की meaning होती है, the meaning of soma is body. The meaning of soma is body. It means this is a disorder which is something related to the body. ये वो disorder है जो body से related है, bodily symptoms से related है. So basically somatoform disorder में क्या होता है? The patients report of physical illness. Patient report of physical illness. In the absence of patients report of physical symptoms of illness. कुछ physical symptoms बताएंगे वो. The report of physical symptoms of illness in the absence of any kind of physical disease. किसी भी तरीके का फिजिकल डिजीज नहीं होता है उन्हें, बट वो रिपोर्ट करते हैं कि वो बीमार हैं. वो रिपोर्ट करेंगे माई हेड इज पेनिंग, माई हैंड इज पेनिंग, ओके आई एम नॉट गोइंग टू बी फेंट, ओके माई लेग इज नॉट वर्किंग, आई एम सफरिंग फ्रॉम हाई फीवर. सो इस तरीके की कुछ सिम्टम्स रिपोर्ट करते हैं पेशेंट. बट वेन उनके एक्सरेज होते हैं या उनका चेकअप होता है तो नो एनी काइंड ऑफ इलनेस और डिजीज फाउंड इन दैट. सो इट इज ऑल्सो अ काइंड ऑफ डिसऑर्डर, चिल्ड्रन, एंड इट इज अ डिसऑर्डर विच इज समथिंग नॉट फिजिकल बट साइकोलॉजिकल. पर्सन रिपोर्ट करता है कि वो बीमार है, पर अगर उनके चेकिंग होते हैं तो कोई भी बीमारी नहीं आती. ये क्या है? इट इज something going on into the head of the person, in the brain of the person, and which is known as a disorder which is name is somatoform disorder. ये disorder है जिसमें person complain करता है physical problem का, but कोई भी physical illness नहीं होता. ठीक है, आगे बढ़ते हैं. Okay, it is not visible to you all. So let me write it over here as if this is not visible. This is visible to you all. Patients report of physical symptoms of illness in the absence of any kind of physical disease. Okay, I am going to rub it with the hope कि आपने इसे note down कर लिया होगा. Soma word is meaning of soma is body. Now we are going to discuss about different kind of somatoform disorder. Okay, so first categorization came the
pain disorder. Second categorization came the, I hope it is visible to you all properly. Okay. So second is the somatization disorder. Third is the hypochondriasis. And fourth is the conversion. So these are the four categories of somatoform disorder: pain disorder, somatization, hypochondriasis, and conversion disorder. Now, this was a categorization which was done in an earlier. Now, in the recently, the next categorization came is the first one. Illness related disorder. इलनेस रिलेटेड, इसका न्यू नेम आया है, न्यू रीनेम आए हैं इन सारे डिसऑर्डर का, ऑलमोस्ट ये सिमिलर है एक दूसरे से. इलनेस रिलेटेड डिसऑर्डर. सेकेंड इज इलनेस एंजाइटी डिसऑर्डर. एंड लास्ट इज conversion disorder. This is the latest classification of somatoform disorder. That somatoform disorder is categorized into three parts: illness related disorder, illness anxiety disorder, and conversion disorder. Earlier somatoform disorder was categorized into these four parts. So children, you should know all the things. आपके पास information होनी चाहिए. You should have the knowledge of everything. बेसिकली यू कैन सी हियर इलनेस रिलेटेड डिसऑर्डर जो आप देख रहे हो, ये इलनेस रिलेटेड डिसऑर्डर इज समवेयर रिलेटेड टू दी सोमेटाइजेशन. सोमेटाइजेशन से ही रिलेटेड है. और इलनेस रिलेटेड डिसऑर्डर एंड कन्वर्जन इज द सेम. ये तो सेम है दोनों, बोथ आर द सेम. ये पहले अर्लियर इट वाज मेंशन बट राइट नाउ इट वाज नॉट मेंशन. एंड सेम विद द पेन डिसऑर्डर. ये टू डिसऑर्डर्स classification were not mentioned in today's recent classification. ठीक है, तो ये basic knowledge you all have to be. Now we will move forward. आगे बढ़ेंगे हम लोग. We will discuss about these things in detail. सबसे पहला है where we will discuss pain disorder. Yeah, pain disorder is also one of the form of somatoform disorder. और इस डिसऑर्डर में जो पेशेंट होता है वो रिपोर्ट करता है इनकैपेसिटेटिंग पेन. इनकैपेसिटेटिंग पेन मीन्स अनटॉलरेबल पेन, एक्सट्रीम पेन. ठीक है, एंड दैट इज हैविंग नो एनी बायोलॉजिकल कॉज. अंडरस्टैंडिंग चिल्ड्रन? व्हाट इज इट? इट इज अ डिसऑर्डर. इट इज समथिंग अ साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम. पर्सन बहुत ज़्यादा पेन अपनी बॉडी में कंप्लेन करता है जिसका कोई बायोलॉजिकल कॉज नहीं होता है ना. मुझे बहुत दर्द हो रहा है, माई बॉडी इज पेनिंग वेरी हैवली. ओके, बट उसका कोई बायोलॉजिकल कॉज नहीं होता. सेकेंड डिसऑर्डर होता है सोमेटाइजेशन. सोमेटाइजेशन में वही इलनेस रिपोर्ट करते हैं कि आई एम सफरिंग फ्रॉम फीवर, आई एम सफरिंग फ्रॉम कोल्ड एंड कफ. इलनेस सोमेटाइजेशन इलनेस रिपोर्ट करते हैं, बीमारी रिपोर्ट करते हैं. हाइपोकॉन्ड्रियासिस में बहुत सीवियर इलनेस रिपोर्ट करते हैं. सीवियर इलनेस लाइक वो कहेंगे मुझे कैंसर हो गया है, एड्स हो गया है, कोरोना वायरस हो गया है. अंडरस्टूड? तो दैट इज अ हाइपोकॉन्ड्रियासिस. देन है कन्वर्जन डिसऑर्डर. कन्वर्जन डिसऑर्डर में वो लॉस ऑफ सम ऑफ द पार्ट ऑफ द बॉडी मेंशन करेंगे. वो कहेंगे हमारे बॉडी का कोई पार्ट है जो मिस है. ओके, जैसे फॉर एग्जाम्पल यू आस्क देम टू टेक आउट या पिक अप द ग्लास ऑफ वाटर फॉर मी.
So they report that I am not having the hand. How I pick up? मेरे तो हाथ ही नहीं है, मैं कैसे पिकअप करूँगा? तो वो रिपोर्ट करते हैं कि कोई उनकी बॉडी का कोई पार्ट जो है वो मिसिंग है. That happen in the conversion. So the same conversion disorder is also here. तो meaning is same है. Illness related वही है, illness report करते हैं, which is alternative name of this one is somatization. The next category which you get is illness anxiety disorder. इसमें क्या होता है? It is also one of the category of somatoform disorder. और इसमें होता क्या है कि पेशेंट जो होता है वो इलनेस रिपोर्ट करता है कि हम बीमार हैं, साथ ही साथ उन्हें एंजाइटी भी होता है. दे हैव एन एक्सट्रीम एंड सीवियर एंजाइटी. बहुत पैल्पिटेट करेंगे, इधर उधर भागेंगे, घबराएंगे, तो ये भी चीज़ें वो करते हैं. इलनेस इज अकम्पनीड बाय द एंजाइटी ओवर हियर. Fine. So I hope children you all have understand the things related to the somatoform disorder. Okay. Here the somatoform disorder is completed. If you find any doubt anywhere, so you will ask me in the classroom. आप ज़रूर से पूछना, ठीक है? तो somatoform clear. Now we will move toward to the next category of disorder. Next form of psychological disorder. The next category of psychological disorder will be the dissociative. अब हम लोग क्या पढ़ेंगे somatoform के बाद? Dissociative. I hope आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा या नोट डाउन किया होगा. चलिए अब हम लोग पढ़ेंगे डिसोसिएटिव डिसऑर्डर. ये भी बहुत ही इंटरेस्टिंग डिसऑर्डर है और इसके डिफरेंट काइंड ऑफ एस्पेक्ट्स हैं. इट ऑल्सो हैज अ डिफरेंट काइंड ऑफ एस्पेक्ट्स. सो डिसोसिएटिव डिसऑर्डर, इससे क्या समझ रहे हैं आप? हियर इज ऑल्सो इट इज ऑल्सो अंडरस्टैंड बाय हिज इट्स नेम. डिसोसिएटिव यानी समथिंग विच इज dissociative, something which is not associative. Association नहीं है, कहीं ना कहीं there was something loss of the connection. So dissociative disorder यानी no association, no association, कोई भी association नहीं है. Dissociation है यानी कोई भी association नहीं है. एंड इन दिस डिसऑर्डर, इस डिसऑर्डर में यही होता है, देयर इज नो कनेक्शन बिटवीन सेल्फ एंड रियलिटी. आप में और रियलिटी में इसमें कनेक्शन नहीं होता. इन दिस डिसऑर्डर नो कनेक्शन बिटवीन सेल्फ एंड रियलिटी. सेल्फ और रियलिटी में क्या होता है? कोई भी कनेक्शन नहीं होता. डिसोसिएशन होता है. डिसोसिएटिव डिसऑर्डर है ये. पर्सन की इमोशंस और रीजंस में कॉन्फ्लिक्ट होते हैं एंड वो मूड डिसऑर्डर में भी होता है. सेल्फ और रियलिटी से कोई कनेक्शन नहीं होता. नाउ इट इज ऑल्सो डिवाइडेड इनटू सम पार्ट. लेट अस डिस्कस अबाउट दोज डिवीजन. Okay, so I'm going to rub it. क्या होता है, क्या कैटेगराइजेशन है इसके? The first is dissociative amnesia. Second is dissociative fugue. Third is dissociative identity disorder. And fourth is
depersonalization. Fourth is depersonalization. So there were the four category of the dissociative disorder children. Dissociative amnesia, dissociative fugue, dissociative identity disorder and depersonalization. Okay, so one by one we are going to discuss about it. I want everybody to note it down. चलिए वन बाय वन हम लोग डिस्कस करेंगे. So I am rubbing this one, the next three. So now what is the first one? Dissociative amnesia. इसमें क्या होता है? इसमें partial और complete loss of memory होती है. Partial और complete loss of memory. क्या हो रहा है? पार्शियल और कंप्लीट लॉस ऑफ मेमोरी. कुछ हिस्सा मेमोरी का लॉस होता है या पूरी तरह से लॉस होता है. ये एक साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम है. डिसोसिएटिव एमनीशिया ये साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर है. ये डिसोसिएटिव डिसऑर्डर है. एमनीशिया में पार्शियल और कंप्लीट लॉस ऑफ मेमोरी होती है. कुछ चीज़ें याद रहती हैं, कुछ चीज़ें नहीं याद रहती हैं. मे भी हो सकता है डिफर फ्रॉम पर्सन टू पर्सन. सम पर्सन रिमेंबर देयर पास्ट इवेंट बट डोंट रिमेंबर देयर प्रेजेंट. समबडी रिमेंबर देयर प्रेजेंट बट समबडी डोंट रिमेंबर देयर पास्ट. तो ये होता है पार्शियल और कंप्लीट लॉस ऑफ मेमोरी, एमनीशिया. नाउ सेकेंड इज डिसोसिएटिव फ्यूग. इसमें क्या हो रहा है? डिसोसिएटिव फ्यूग में इट जस्ट लाइक जैसे वेकअप स्टेज. फ्यूग की मीनिंग ही होती है, द मीनिंग ऑफ फ्यूग इज वेकअप. वेकअप होते हैं, फ्यूग होता है उनको. ठीक है. ठीक है. डिसोसिएटिव फ्यूग क्या हो रहा है? इसमें क्या होता है कि person suddenly go from their workplace and about to start a new journey of their life, and suddenly they have a feud and they come back to their old life and forget about their new life. ये एक तरह का साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम है, जैसे कि वो अपने न्यू लाइफ को भूल जाते हैं, सॉरी अपनी करंट लाइफ को भूल जाते हैं और एक न्यू लाइफ स्टार्ट कर देते हैं, कहीं चले जाते हैं, वहाँ पे अपनी सारी पास्ट की मेमोरी उन्हें याद नहीं रहती. दे अबाउट टू लिव देयर लाइफ वेरी हैप्पीली एंड सडनली एक फ्यूड होता है उनके माइंड में एंड दे वेक अप एंड दे रिमेंबर देयर ओल्ड मेमोरीज एंड दे फॉरगेट अबाउट देयर रिसेंट मेमोरी. रिसेंट मेमोरी जितनी भी रहती है उनको वो भूल जाते हैं. डिसोसिएटिव फ्यूड के बाद we have discussed about amnesia and dissociative fugue. Now we are going to discuss about the third categorization of the dissociative disorder. That is dissociative identity disorder. Dissociative identity disorder. Dissociative identity disorder तो बच्चों it also have an alternative name. इसे हम लोग मल्टीपल पर्सनालिटी डिसऑर्डर भी कहते हैं. It is also known as multiple personality disorder. Multiple personality disorder. इसमें क्या होता है? In this the person is having a more than one personality. And one personality is not aware about the other. इसमें पर्सन में एक से ज़्यादा पर्सनालिटी होती है और एक जो होता है वो दूसरों के बारे में अवेयर नहीं होता. मल्टीपल पर्सनालिटी डिसऑर्डर, जिसे डिसोसिएटिव आइडेंटिटी डिसऑर्डर भी कहते हैं. इन दिस द पर्सन इज हैविंग
personalities, more than one or two personalities. ठीक है, इसमें पर्सन में एक या एक से ज्यादा पर्सनालिटीज होती हैं. एंड वन पर्सनालिटी इज नॉट अवेयर अबाउट दी अदर वंस पर्सनालिटी. एक पर्सनालिटी दूसरे पर्सनालिटी के बारे में नहीं जानती है. इट हैज बीन फाउंड दैट सिगमंड फ्रेड का कहना था कि दिस काइंड ऑफ डिसऑर्डर इज हैपन व्हेन वी रिप्रेस्ड आवर थॉट्स एंड फीलिंग, and that goes into the unconscious, and due to repression of the thoughts and feeling which send to the unconsciousness, वो कहीं ना कहीं पर्सनालिटी के फॉर्म में आता है. जैसे जो भी आपके डिज़ायर और फीलिंग होते हैं वो रिप्रेस हो जाते हैं, तो आपकी सेकंड पर्सनालिटी जो है ये माना जाता है कि वो उसे फुलफिल करती है. एंड दैट इज व्हाई पर्सन इज डेवलपिंग दिस डिसऑर्डर. इसके बाद है द फोर्थ एंड द लास्ट वन कैटेगरी ऑफ द डिसोसिएटिव डिसऑर्डर इज डीपर्सनलाइजेशन. डीपर्सनलाइजेशन एक ड्रीम लाइक स्टेट होता है. इट इज अ ड्रीम लाइक स्टेट. ये क्या है? एक तरह से ड्रीम लाइक स्टेट है. डीपर्सनलाइजेशन इज अ ड्रीम लाइक स्टेट. इसमें क्या होता है? इसमें पर्सन इज हैविंग अ ड्रीम एंड ही और शी बिलीव दैट इट वाज रियल. एक सपने देखते हैं और उसे रियल मानने लगते हैं, या एक सपने की दुनिया में चले जाते हैं. डीपर्सनलाइजेशन. So here we have completed the categorization of the different kind of dissociative disorder. So children, we have discussed about somatoform and dissociative. I hope you all understand it. So students, we have discussed two of the great disorders. Now we are going to study about the next disorder, which is the mood disorder. Mood disorder is another kind of psychological disorder which is related to the mood. There is something, a conflict between emotion and reason. Reason कुछ होता है, emotion कुछ आता है. Mood swings होते हैं. मूड स्विंग्स होते हैं, इसमें कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं बिटवीन इमोशन एंड रीजन. मूड स्विंग्स है, कॉन्फ्लिक्ट्स है बिटवीन इमोशन एंड रीजन. ठीक है. So these 2 points are very important related to the mood disorder. It was also categorized into 3 parts. ये भी 3 parts में categorized है. I hope अपने points लिखने होंगे. The first one is major depressive disorder. Second is mania. Mania या मैनिक भी बोल सकते हैं, मैनिक डिसऑर्डर. ठीक है. थर्ड इज द बाइपोलर डिसऑर्डर. Bipolar disorder. So these are the 3 categorization of the mood disorder. Major depressive disorder को आप डिप्रेशन भी बोल सकते हो, which is a part of the mood disorder. मैनिक डिसऑर्डर को आप मेनिया कह सकते हैं.
और बाइपोलर को मैनिक डिप्रेसिव, क्योंकि इसमें दोनों चीजें होती हैं, बोथ द थिंग्स आर प्रेजेंट। तो ये सारे इनके अल्टरनेटिव नेम हैं, नोट इट डाउन। मेजर डिप्रेसिव डिसऑर्डर को डिप्रेशन कह सकते हैं, मैनिक डिसऑर्डर को मेनिया कह सकते हैं, और बाइपोलर डिसऑर्डर इज नोन एज मैनिक डिप्रेसिव। Okay children, so these are the three categorization which you all understand. So first one is the major depressive. डिप्रेशन आई थिंक ऐसा वर्ड है जो सभी के लिए कॉमन है। आज के समय में nobody is there who don't know about the depression. डिप्रेशन में क्या होता है, पर्सन want to become isolated with everyone, want to become alone, डिसइंटरेस्ट होता है इन इवन इन द प्लेजरेबल एक्टिविटीज ऑल्सो। ओके, जो चीज़ें उनको पहले पसंद थी अब वो भी नहीं पसंद आती हैं। समवेयर अ काइंड ऑफ इमोशंस लाइक फ्रस्ट्रेशन, एंगर, ये सब होता है डिप्रेशन में। दे डोंट वांट टू, सोशल इंटरेक्शन बहुत कम हो जाता है। इवन अदर फिजिकल प्रॉब्लम भी आती है जैसे स्लीपिंग प्रॉब्लम, एपेटाइट प्रॉब्लम। तो ये सारी कुछ सिम्टम्स होते हैं डिप्रेशन के। डिप्रेशन के बाद मेनिया, मेनिया जस्ट अपोजिट होता है डिप्रेशन का। जहाँ डिप्रेशन में सोशल इंटरेक्शन कम हो जाता है, मेनिया में उतना ही ज़्यादा सोशल इंटरेक्शन होता है। डिप्रेशन में लोग दुखी रहते हैं, सैड रहते हैं, इमोशन जो होता है वो सैड होता है। बट इन मेनिया द इमोशन इज हैप्पीनेस, खुश रहते हैं, बहुत ज़्यादा हैप्पी रहते हैं, जस्ट डिफरेंट इमोशन। आपने देखा होगा कई कई लोग को दे लाफ अननेसेसरली लाफ करते रहते हैं, हंसते रहते हैं, रोड पे चलते रहते हो हंसते हुए जाते हैं। तो दे वर ऑल द मेनिया, मेनिया उनमें मूड डिसऑर्डर है। देन इज द बाइपोलर डिसऑर्डर जिसमें कि मैनिक और डिप्रेसिव एपिसोड्स आर अल्टरनेटिवली प्रेजेंट। इट इज प्रेजेंट अल्टरनेटिवली। अल्टरनेटिवली मीन्स हो सकता है कभी डिप्रेशन के एपिसोड्स आते हों, फिर कुछ टाइम बाद मैनिक एपिसोड आते हों, फिर डिप्रेशन आते हो, मैनिक आते हो। ठीक है, जैसे वन ऑफ द केस वाज देयर, आई विल डिस्कस विद यू अ केस स्टडी ऑफ अ पर्सन हु इज वर्किंग इन एन ऑर्गेनाइजेशन एंड ही रिपोर्टेड दैट मैम फ्रॉम मॉर्निंग अप टू द 12, सुबह से लेके 12 बजे तक में मेरा मूड जो होता है बहुत डिप्रेस्ड रहता है, मुझे कुछ भी अच्छा नहीं लगता। जस्ट 12 बजे के बाद मैं बहुत अच्छा रहता हूँ, मैं खुश होता हूँ, मैं सबसे बात करता हूँ। तो ये क्या है? तो इट इज़ अ बाइपोलर मूड डिसऑर्डर। बाइपोलर में मैनिक और डिप्रेसिव अटैक्स आते हैं, एपिसोड्स आते हैं पर्सन को। मेनिया का भी एपिसोड आएगा और डिप्रेशन का भी एपिसोड आता है। ठीक है बच्चों, तो आपको ये समझ में आया डिप्रेशन, मेनिया, बाइपोलर डिसऑर्डर अच्छे से? डिप्रेशन को बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो डिटरमाइन करते हैं, जैसे एज एक फैक्टर है जो डिटरमाइन करता है, जेंडर डिटरमाइन करता है, और पर्सन का सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस डिटरमाइन करता है। तो कुछ फैक्टर्स हैं जो कि डिप्रेशन को डिटरमाइन करते हैं। सो ओवरऑल इट इज ऑल्सो काइंड ऑफ मूड डिसऑर्डर। ये सारे मूड डिसऑर्डर की कैटेगराइजेशन है। डिप्रेसिव पीपल जो होते हैं उनमें एक सुसाइडल थॉट्स देखने को मिलता है, उनमें ज़्यादातर अपने आप को नुकसान पहुंचाने वाले थॉट्स रहते हैं कि मैं अपने आप को मार लूँ। ठीक है, तो इस तरीके की चीज़ें इसमें दिखती हैं। अदरवाइज मैनिया वाले में मैनिक वाले पेशेंट जो होते हैं वो इतने इतने डेंजरस नहीं होते, और इन कंपैरिजन टू द डिप्रेशन एंड देन कम टू द मैनिक डिप्रेशन, ये भी सही नहीं है, अप्रोप्रिएट बिहेवियर नहीं है। So I just hope children you understand the 3 kind of disorder which I discussed with you in this video about the somatoform disorder, dissociative and mood disorder. In case you find difficulty in understanding, you will ask me in the classroom children. Your questions are most welcome. So I just say thank you so much for carefully listening and observing this video. Thank you so much children.
and have a nice day to you all.